भोपाल को अब तक क्या होल्ड बैक कर रहा था? एक्चुअल में भोपाल को होल्ड बैक करने में सबसे बड़ा रीजन रहा उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस। हमारे पास इतनी अच्छी एजुकेशन है, लेकिन बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं और फिर वो बाहर जाना चाहते हैं। बच्चों का जो कनेक्शन है वो इंडस्ट्रीज के साथ बनना चालू होगा तो उनकी अर्निंग्स चालू होगी। Right. तो डेफिनेटली वो लर्न करेंगे, अर्न करेंगे तो वो ग्रो करेंगे। लेक को हमेशा अलग गंदे नामों से ही प्रमोट किया जाता है या कुछ नेगेटिव प्रमोटिंग ही हम देखते आ रहे हैं, तो उसके लिए आप यूथ से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर घर में भी दिक्कत होती है, हर किसी जगह पे दिक्कत है, बट कभी अगर कल कोई मेहमान आता है तो मैं अपने घर की दिक्कत नहीं दिखाऊंगा, मैं अपने घर की बेस्ट पिक्चर दिखाऊंगा। तो आप सब भी अपने खुद के ब्रांड एम्बेसडर्स हो अपने अपने कैपिटल के लिए। तो मैं आपसे यही बस इस पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज मेक इट श्योर कि जो भी आप रील्स प्रमोट करो, जो भी कंटेंट आप प्रमोट करो, वो चीजें दिखाइए जिससे भोपाल की ब्रांडिंग हो सके। Welcome everyone to 2026. We have just celebrated Republic Day, a day that reminded us that democracy doesn't exist only in the constitution, but in its people, in the citizens who questions, in the leaders who listens, and in the cities that follows the new culture and doesn't want to stay back in the past. Bhopal has always been known for its lake, इसका सुकून, इसका silence, इसकी तहजीब, but it is also writing a new story of vision, new collaborations, actions, and speedy growth. So this episode is about Bhopal beyond postcards, beyond nostalgia, beyond the hashtags of slow city. So let's welcome our new members of this show, जो भोपाल के लिए इस तरह से काम कर रहे हैं कि इसके एक्शंस, इसके डिमांड्स, इसकी स्पीड, इसका विजन सब कुछ चेंज हो रहा है। This show is about Bhopal beyond lakes. From lakes to legacy. Before we dive into the communication with this amazing guest, let me introduce you with the people, those who belong to an amazing frame of best, a team which is led by citizens and which is changing the entire graph of Bhopal with their new visions, with their new demands, with their actions. ये एक कोलैबोरेशन है भोपाल का, भोपाल के लोगों के साथ, जो उन्हें वेलकम करता है कि आप आगे आएं और सिटी के लिए कुछ नया करें, कुछ नई डिमांड्स लेकर आएं। सो लेट्स वेलकम दिस अमेजिंग टीम ऑफ बेस्ट भोपाल। So now I would like to welcome Mr. Sparsh Dwivedi. He's a founder of Best Bhopal Ek Saath team. Welcome, sir. He's a president of Dream Bhopal, Green Bhopal, corporate leader for 18 plus years, head MP for Axis Max Life, Swachh Ambassador nominee known for work life and social balance. Thank you so much for joining here. Next to me is an amazing, gorgeous woman. She is Deepa Dwivedi. She's a corporate professional, founder of Dream Bhopal, Green Bhopal, co-founder of Best Bhopal Ek Saath team. Thank you so much for joining us here. Now the third guest joining us is Madhur Sinha. She is an amazing person. She is into education. She is a founder of Lions Club Preschool, social activist for women and children, specialist in early intervention for autistic children. Amazing. Your name is Madhur and you are working so beautiful for women and children. Thank you so much for joining us. Now we have the most important person of Bhopal. हम सब इन्वेस्टमेंट्स की बस बातें करते हैं, बट ही इज समबडी जो हमें इन्वेस्टमेंट्स के बिल्कुल सही और अमेजिंग टिप्स देते हैं। जॉइनिंग अस ओमनाथ शर्मा, बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट, डायरेक्टर बड़ा तालाब इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, डायरेक्टर कैचअप कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड. Thank you so much for joining us. Today we'll be getting some amazing tips for new investments in Bhopal. So it's time to start our first round, which is awakening the city. When citizens rise, cities transform. ऐसा कहा जाता है कि जब हम सब मिलके कुछ करते हैं तब कुछ नए बदलाव आते हैं. So हम समझेंगे कि क्या वो नए बदलाव लेकर आ रहा है बेस्ट इस भोपाल के अंदर. So स्पर्श, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड हमें बहुत अच्छा लगा कि भोपाल बेस्ट आज हमारे साथ यहाँ पर है. हम ये समझना चाहते हैं कि आपने ये एसोसिएशन क्यों स्टार्ट किया, ये जो भोपाल बेस्ट है ये हमने क्यों स्टार्ट किया, प्रमोशन की नीड हमें भोपाल के अंदर क्यों आई? So first of all, thank you Simran for giving this opportunity again, and आपके talk show पे भी have been invited. So first of all, thank you for that. Yes. And again, I would say that thanks again because through this also we are able to promote our capital city.
और हमें क्यों लगता है कि हमें बेस्ट की आवश्यकता पड़ी, तो लेट अस गो 3 years बैक, जब हमने रियलाइज किया कि बड़े जितने भी कोई अगर कॉन्क्लेव्स होते थे या कोई भी बड़े अगर फंक्शंस होते थे वो सारे किसी और सिटी चले जाते। बट अगर आप देखोगे वी आर द ओनली कैपिटल सिटी जहाँ पे आप कमर्शियल कैपिटल किसी और को कहते हो, लीगल कैपिटल किसी और को कहते हो और वास्तविक कैपिटल किसी और को। ट्रू। और बाकी कहीं भी अगर आप जाएंगे साउथ में और इधर इन ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ, तो जो कैपिटल सिटी है सबसे पहले उसको देखा जाता है, देन अदर सिटीज आर सीन। बट समवेयर वी सॉ कि एक पैराडॉक्स एमपी के लिए कहीं ना कहीं बन गया अगर आप देखो, और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं पूरी जो भोपाल की जो सिटीजन्स है उन्होंने भुगता। रीजन बीइंग कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रहे थे, कई बच्चे अपने पढ़ाई के बाद बाहर जा रहे थे बिकॉज वैसे उनको इन्वेस्टमेंट्स या वैसी अपॉर्चुनिटीज वैसे कॉर्पोरेट्स। So we thought why not, and we saw that भोपाल को आज भी ग्लोबली सिर्फ अगर आप देखोगे भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए जाना। Of course. And we have gone far ahead than that and beyond in leagues जैसे आप बात कर रहे हो तो 40 years हो चुके हैं हमारे। So we thought कि let us realize and take it to the state government, तो हमने Let's Brand भोपाल कैंपेन की शुरुआत करी and we got into certain things कि हमें क्या क्या चीज़ें वहाँ पे करवानी है। फिर हमें काफ़ी अच्छा उनसे भी सपोर्ट मिला। हमारे जो तब मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर थे और अब जो स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्टर हैं श्री विश्वास कैलाश सारंग जी, उन्होंने उसको बहुत सपोर्ट किया, काफ़ी मोटिवेटेड किया हमें और काफ़ी इसमें बताया किस तरह से आप काम कर सकते हो। एंड सब्सिक्वेंटली हमने 3 डिमांड्स फ्रीज करी जिसमें हमने बात करा कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एंड सब्सिक्वेंटली फिर लेट्स ब्रांड भोपाल कैंपेन से हम लोगों ने बेस्ट का फॉर्मेशन किया, विच वॉज बेसिकली भोपाल एक साथ टीम, दैट एवरीबडी अराउंड भोपाल एंड अक्रॉस भोपाल कम टुगेदर टू प्रमोट भोपाल। Right. बिकॉज जब तक भोपाल बढ़ेगा नहीं तब तक हम नहीं बढ़ सकते। तो मुझे लगता है कि आज भोपाल में हम लोग अपने आर्ट एंड कल्चर के लिए जाने जाते हैं, वी आर नोन फॉर दैट लेगेसी, बट जब तक इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगे ना तब तक हमारा जो कैपिटल है वो कैपिटल रिलेटेड ग्रोथ नहीं लेगा। हमें एक शहर के तौर पे तो जाने जा रहे हैं पर एज अ कैपिटल, यस। सो वो स्वाभिमान हमें लोगों में देना बहुत जरूरी था, और कैसे इसको हम पूरा ग्लोबली नेशनली और पूरा प्रमोट करें वो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था जिसके साथ हमने बहुत अमेजिंग क्या हमारी डिमांड्स थी जो बहुत ही अमेजिंग। मतलब ये जो आपने स्टार्ट किया, ये फॉर्मेशन जो ये प्लेटफॉर्म जो आपने स्टार्ट किया, ये बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। या ये प्लेटफॉर्म किसी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, यहाँ के लोगों ने ये प्लेटफॉर्म बनाया है और यहाँ के लोग चाहते हैं कि हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ मिले, हमें वो ज़रिया मिले जिससे हम एज अ कैपिटल, एज अ सिटीजन ऑफ कैपिटल जाने जा सके। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया आपने। सो दीपा जी, अभी तक हमने बात करी स्पर्श जी के साथ और हमने समझा कि ये एक प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं जो सिटीजन्स के द्वारा बनाया गया है यहाँ के सिटीजन्स के लिए। सो ये क्यों करना पड़ा हमें कि हमें सिटीजन्स का इन्वॉल्वमेंट क्यों लेना पड़ा? गवर्नमेंट तो ऑलरेडी काम कर रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सिमरन फॉर इनवाइटिंग। जो क्वेश्चन आपने किया उसका एक सबसे पहला आंसर तो यही है कि सिटीजन्स जब तक आगे नहीं आएंगे तो कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी वर्क नहीं करेगी। गवर्नमेंट तो बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है और अपनी सिटी को प्रमोट करने के लिए आगे बढ़ रही है, लेकिन जब तक सिटीजन्स इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझेंगे, तब तक ये पॉलिसी सस्टेनेबल नहीं होगी। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है कि लोगों के अंदर ये जागरूकता आनी चाहिए। जैसे मैंने बाकी शहरों में भी देखा है कि लोग जो है इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि वो अपनी सिटी को मतलब खुद से आगे बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी है उनके अंदर। वो सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं है कि सरकार ही सारी चीज़ें करेगी तभी हम चीज़ों को ठीक करेंगे। अगर हम खुद से ही उसकी जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमारा शहर ग्रो करेगा। वेरी नाइस। सो अभी रिसेंटली आप लोग ने एक इवेंट किया था जिसमें भोपाल के बहुत सारे लोग एक साथ शामिल हुए थे। सो वो कैसा इवेंट था और लोगों का क्या प्रतिक्रिया थी उस इवेंट में आने के बाद? एक्चुअली हमने जो अभी फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था वो इस थीम पे था कि जिन लोगों ने भी भोपाल को ग्लोबली प्रमोट किया है उनको हम उस स्टेज पर लेकर आए, जिससे कि उनकी भी पहचान बाकी लोगों तक पहुंचे। Very nice. कि उन्होंने भोपाल को किस लेवल पर आगे पहुंचाया है। और इसके मतलब इस प्रोग्राम में काफ़ी सारे ऐसे लोग भी थे जिसने इस भोपाल को लाइक ग्लोबली इंटरनेशनली हर जगह पर भोपाल के नाम को आगे रखा है, क्योंकि अभी तक भोपाल का नाम बहुत पिछड़ा था। लोग भोपाल के नाम को सिर्फ गैस ट्रेजेडी के ही नाम से जानते थे, अभी वो किसी और एंगल से भी भोपाल को जानने लगे। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। सो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है और लोगों ने जब इसके साथ अपने आप को जोड़ा तो उनको ये महसूस हुआ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपने आप को एक नई पहचान दे सकते हैं। जी, बहुत ही ब्यूटीफुल। सो मधुर जी, जैसे अभी तक हमने बात सुनी कि लोगों का इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है,
बेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिटीजन्स के लिए बनाया गया है, सिटीजन्स के द्वारा। लेकिन वो कौन सा ऐसा माइंडसेट है जो अभी भी एक वो शिफ्ट नहीं आया है, वो शिफ्ट आना चाहिए सो दैट यहाँ के लोग इस चीज़ को समझें, इस प्लेटफॉर्म को समझें और इस कल्चर के साथ अपने आप को डेवलप कर सकें? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि माइंडसेट जो है, शिफ्टिंग जो ज़रूरी है, माइंडसेट शिफ्टिंग, वो सबसे पहले हमें रिएक्टिव माइंडसेट होने से सबसे पहले रिएक्टिव माइंडसेट होने की जगह हमारा जो माइंडसेट है वो विजनरी माइंडसेट होना चाहिए। विजनरी माइंडसेट को हम कैसे समझेंगे? ऐसे समझ सकते हैं हम इसको कि हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, सपोज पॉपुलेशन बढ़ गया, सड़क खराब हो गई और हमारा एजुकेशन खराब हो रहा है, तब हम उसके सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। ये रिएक्टिव माइंडसेट कहलाता है। बट यदि हम इसको इस वे में देखें कि भाई हम पहले ही अपने एजुकेशन सेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि हमारा बच्चा स्किल्ड हो, वो अपना जॉब खुद ले सके, या हमारी इंडस्ट्री उस लेवल पे डेवलप हो कि जो आसपास का जो सपोर्ट है, जो हमें सिटी को सपोर्ट देना है, वो सपोर्ट वो खुद दे सके, तो ये माइंडसेट जो होता है वो विजनरी माइंडसेट कहलाता है। तो डेफिनेटली एक सिटी की ग्रोथ के लिए, खासतौर पे कैपिटल की यदि हम बात करें, तो जैसे जैसे अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, वैसे वैसे जो कह सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं वो ग्रोथ का सबसे ज्यादा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो असर है वो कैपिटल सिटीज पे आता है। तो ये जो असर है, हम अर्बन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो ये असर जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव ना हो, इसके लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम एक प्रॉपर वे में, इंटीग्रेटेड वे में अपना विजन रखें कि हमें उस पॉपुलेशन का भी फायदा मिले, वो हम पे बर्डन ना हो। सबसे पहले तो यही हमारे लिए जरूरी है। तो हम ये कुल मिला के कह सकते हैं कि शॉर्ट थिंकिंग की जगह हमें लॉन्ग टर्म थिंकिंग, मतलब हम आगे इन्वेस्टमेंट के पहले ब्रेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, विजन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। बहुत अमेजिंग बात। सो इन अ वे कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि भोपाल बेस्ट के साथ अगर हमें जुड़ना है तो हमें एक लॉन्ग टर्म विजन लेना होगा भोपाल के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के फ्यूचर के लिए, सो डेट हम आने वाले समय में जिस भोपाल की हम कल्पना कर रहे हैं उसको हम आज अपने विजन्स में लेकर आ सके, सो डेट वी कैन क्लेम दैट। डेफिनेटली। सो ओमनाथ जी, अभी हमने जिस तरह से मधुर जी से बात करी, शी इज सेइंग कि विजन का इन्वेस्टमेंट पहले ज़रूरी है। सो एज एन इन्वेस्टर्स व्यू, भोपाल को अब तक क्या होल्ड बैक कर रहा था और क्या ऐसे नए चेंजेस हैं जो अब आ रहे हैं? एक्चुअल में भोपाल को होल्ड बैक करने में सबसे बड़ा रीजन रहा उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस का। भोपाल देश जब आजाद हुआ से लेकर आज तक अगर आप देखोगे, भोपाल में बहुत सारे इंडस्ट्रियल हब्स हुए। BHEL भोपाल में एक बहुत पहले स्थापित एक इंडस्ट्री है। गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन BHEL के जमाने का 1960-1965 की बनाई हुई एक जगह है। HEG भोपाल में है, अभी आप देखेंगे वॉल्वो भोपाल में है। लेकिन इस पे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक शोले पिक्चर से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस है भोपाल के साथ में। भोपाल में बहुत बड़ा एक टैलेंट पूल है, कभी उस पर बात नहीं होती। भोपाल में 150 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इंजीनियरिंग के कॉलेजेस हैं, जागरण मतलब काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो लॉ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका नेशनल लेवल पे नाम है। लेकिन उस पर बात नहीं होती। हमारी जो बातें होती है वो छोटे छोटी चीज़ों पे होती हैं। आपको भी बड़ा ताजुब होगा, भोपाल शायद एकमात्र ऐसी जगह होगी, अगर आप मॉर्निंग वॉक करने जाएंगे तो पता चलेगा आप किसी नहर के या झील के किनारे पे मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। अगर आप अपने ऑफिस के बीच में कम्यूट कर रहे हैं तो पता चलेगा कि आप झील के ऊपर से आप कम्यूट कर रहे हैं। ऐसा किसी शहर में आपको नहीं मिलेगा। एक बड़ी विडंबना ये है, भोपाल के आसपास इतने टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि इंडिया की किसी भी राजधानी के आसपास इतने सारे यूनेस्को की साइट्स या ऐसी नामी ग्रामी टूरिज्म की प्लेस नहीं होगी। 200 किलोमीटर पे आप पचमढ़ी जा सकते हैं, 115 किलोमीटर पे आप मढ़ई जा सकते हैं। भोपाल में अगर आप 20 किलोमीटर बाहर जाएंगे तो मालूम पड़ेगा आप किसी जंगल के गेट के पास पहुंच चुके हैं। वेरी ट्रू। तो इस पे किसी की बात नहीं होती, ये हम शायद बात नहीं करते। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, भोपाल के आसपास इतने बड़े इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं जो आज के नहीं है, 50-50, 60-60 साल पुराने इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं, जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे लोगों को रोजगार मिला हुआ है और वो सब टैलेंट भोपाल ने प्रोवाइड किया हुआ है। तो हमें अब बात करने का अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा। हमें दुनिया को बताना पड़ेगा कि वी आर टैलेंट पूल ऑफ इंडिया। भोपाल इज टैलेंट पूल कैपिटल ऑफ इंडिया। भोपाल में टैलेंट है तभी इतना सब कुछ है। तो इस आइडेंटिटी को बदलना है। भोपाल एक साइड टीम का मेन पर्पस ही यही है कि हम उस आइडेंटिटी को चेंज करना चाहते हैं और वर्ल्ड के, इंडिया के नक्शे पे वो चीजों को बाहर लेकर के आना चाहते हैं कि भोपाल ने इस देश को क्या दिया है, क्या दे सकता है। राइट।
तो मतलब सिर्फ हमें गैस स्ट्रेटजी से ना जाना जाए, हमें सिर्फ लेक से ना जाना जाए, हम कुछ और भी हैं जिसे पूरे तरीके से देखा जाए। शोले से हाँ राइट, शोले से भी ना देखें बस हमें, हम उससे कई ज्यादा बड़ा टैलेंट पूल है। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। सो इसके इर्द गिर्द अगर मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँ कि लोग अक्सर ये बात करते हैं कि भोपाल जो है ना वो बस एक सुकून की जगह है, जस्ट अ प्लेस टू गेट रिटायर्ड, तो इस पे आप क्या कहेंगे उनसे? ये एक बहुत पुराना विडंबना है, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात भी है। जिसने भी भोपाल में 1 साल या 2 साल काम किया है, अगर आप उससे पूछेंगे तो वो चाहता है कि अपनी जिंदगी वो भोपाल में ही व्यतीत करे पोस्ट रिटायरमेंट। ये एक भोपाल के लिए कॉम्प्लीमेंट है। यही मैं पूरे देश के नए टैलेंट को भी बोलना चाहूंगा कि भोपाल एक वो जगह है जहाँ पे जिसने काम किया है 1 साल 2 साल, वो यहाँ से अगर गुजरा है तो वो भोपाल में अपने बच्चों के साथ सेटल होना चाहता है। तो हम तो चाहते हैं कि आप सब भोपाल में आइए, अपने वर्क लाइफ बैलेंस को बनाने की कोशिश कीजिए। भोपाल आपको इकोसिस्टम प्रोवाइड करेगा आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी इंडस्ट्री के लिए, आपके सर्विस सेक्टर के लिए। आप यहाँ पे आएंगे, यू विल हैव अ बैलेंस्ड लाइफ। अगर कोई रिटायर्ड आदमी यहाँ पे बैलेंस लाइफ जी सकता है तो ऑब्वियसली यंग टैलेंट जो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे जाने में व्यतीत करते हैं, आने में 2-2, 3-3 घंटे व्यतीत करते हैं, हमारे भोपाल में आइए। आप 15 मिनट में अपने ऑफिस में पहुंच सकते हैं और डेफिनेटली मैं चैलेंज करता हूं इस 15 मिनट में आपको हवा की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी मिलेगी। वेरी नाइस। नाउ वी कम टू आवर सेकेंड राउंड विच इज़ फ्रॉम विजन टू एक्शन। हम बहुत सारे विजन्स तो लेके चलते हैं, लेकिन उनके लिए एक्शंस कितना लिया जाता है, भोपाल बेस्ट किस तरह के एक्शंस पे काम कर रही है, अब हम ये समझते हैं उनसे। सो स्पर्श जी, थैंक यू सो मच अभी जो आपने बताया कि आपने जिस तरह से इसको प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया है। तो अब मैं ये समझना चाहती हूँ कि आपने ऐसी कौन सी चीज़ें की, ऐसी कौन सी सिस्टम के साथ बातें की हैं जिससे आपको लगता है कि हाँ डेफिनेटली हमें सुना जा रहा है? देखिए, सबसे पहले इसमें सिमरन अगर मैं आपको बताऊं, किसी भी चीज़ के लिए एक ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने भी लोगों से जब बात की, जब हम लोगों ने सबसे बातचीत की ना, इसमें ऐसा ही जैसे एक ही सेक्टर से बात की, सबसे बात की है, बीट स्टूडेंट्स, बीट वर्किंग प्रोफेशनल्स, बीट रिटायर्ड पीपल, बीट ब्यूरोक्रेट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ऑल। तो देयर वर सर्टेन थिंग्स जो हमने आइडेंटिफाई करी कि जो भोपाल में होनी चाहिए, जिससे कि हमें एक इमीडिएट बूस्ट मिल सकता है। सो हम लोगों ने जब 7-8 डिमांड्स रेज करी, उसमें से जो टॉप 3 डिमांड्स निकल के आई हैं, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि भाई भोपाल में अगर आप देखते हैं कोई बड़ा, बिकॉज हम सेंट्रली लोकेटेड है, राइट, तो एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर यहाँ पे बन सकता है। जैसे आप देखेंगे भारत मंडपम जो है, तो वहाँ पे आज जितने भी नेशनल बड़े या इंटरनेशनल इवेंट्स है वो होते हैं। तो अगर हम सेंट्रली लोकेटेड हैं एंड वी गेट अ गुड स्पेस, तो वहाँ पे क्यों ना बड़े जितने भी आपके इवेंट्स हो वो वहीं पे ऑर्गेनाइज किया जाए। सो अगर आप देखते हैं तो गवर्नमेंट ने उस पर काम करते हुए वहाँ पे विजन टू एक्शन में हम बात करते हैं, हमने जब ये मांग रखी तो अब मिंटो हॉल का एक्सटेंशन भी अगर हो रहा है, आप देख रहे हैं उसको 2,500 से 3,000 की कैपेसिटी का किया जा रहा है। देन सेकंड हमने जो बात रेस करी कि जो भी अगर बड़े आयोजन किए जाएं, वो सबसे पहली प्राथमिकता उसमें भोपाल को मिले, क्योंकि हमने देखा पहले कहीं ना कहीं जितने भी आयोजन होते थे उसकी प्राथमिकता किसी और शहर को मिलती। बट वी वुड लाइक टू थैंक जो हमारी अब गवर्नमेंट है, डॉक्टर मोहन यादव के अंतर्गत जो पूरे इसमें जो हमारी इनकी चल रही है गवर्नमेंट, इसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उन्होंने फर्स्ट टाइम अगर आप देखते हैं इस लेवल का भोपाल पे किया है, और भोपाल का पूरा अगर हम देखते हैं तस्वीर बदल, और वहां से लोगों को लगा कि अगर इन्वेस्टमेंट्स एक बार के लिए अगर ऐसा समिट हो रहा है, तो जब इतना पूरा चेहरा भोपाल का चेंज हो रहा है, तो लगातार अगर ऐसे कॉर्पोरेट्स आते रहेंगे, इन्वेस्टमेंट्स आते रहेंगे, तो पूरी यहाँ पे हम लोग अपनी तस्वीर चेंज कर सकते हैं। वेरी नाइस। सबसे मेन चीज उस पे हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि यहाँ के जो नेटिव बच्चा है वो बाय चॉइस बाहर जाए, बाय फोर्स बाहर ना जाए। और आज यही हो रहा है कि जितने भी बच्चे हैं उनको आफ्टर ग्रेजुएशन वैसे उनके लाइक पैकेजेस नहीं है, वो वापस आना भी चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये हमारे लिए ब्रेन ड्रेन है, हम अपने बच्चे को रोक नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार भी आपका उस पर लगे हुआ है। तो ये हमारा सेकंड था जिसपे हम लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी यहाँ पे हो पाया, अभी स्टार्टअप समिट भी हुआ है, और हमने ये भी बोला कि जो भी प्राथमिकता दी जाए पहले भोपाल को दी जाए। तो अभी जैसे अगर आप देखते हैं जब डावोस में अभी सीएम होके आए तो गूगल को लेके भी बातचीत हुई है, तो अगर वो भी भोपाल आता है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज बनती है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि। तो उसके लिए भी हम लोग बिल्कुल बात कर रहे हैं। एंड थर्ड हमने आइडेंटिफाई किया कि भोपाल में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होना बहुत जरूरी है, राइट, बिकॉज वी आर द ओनली कैपिटल सिटी जो सेंट्रली लोकेटेड या लैंड पे लोकेटेड है, और वहां पे कोई भी क्रिकेट इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं। अगर आप देखेंगे जब धर्मशाला में पहाड़ पे बन सकता है, तो भोपाल में भी बन सकता है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्रिकेट, अगर आप देखेंगे आईपीएल एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि उससे सिर्फ आप एक गेम उससे स्पोर्ट्स प्रमोट नहीं हो रहा है, और हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा कल्चर आ रहा है, स्पोर्ट्स का स्टेडियम आ रहा है, बट अगर क्रिकेट आता है तो
तो उसको लेके अगर आप देखते हो तो यहाँ पे इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इवेंट्स के लिए काम मिलता है, हॉस्पिटैलिटी के लिए काम मिलता है, कैब्स में सारे इंटरकनेक्टेड, सब इंटरकनेक्टेड। Right. और एक अगर आप देखोगे जैसे अभी इन लोगों ने अहमदाबाद में जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था, एक रूम का प्राइस 1.15 लाख रुपीस, द इकोनॉमी वाज बूस्टेड, तो ऑटोमेटिकली पैसा भोपाल में फ्लो होगा, जब पैसा आएगा तो शहर और हमारा कैपिटल अपने आप बढ़ेगा। तो एज अ कैपिटल वी थॉट कि ये चीजें होना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। सो व्हाट इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी फॉर भोपाल राइट नाउ? See, what I see as the current and the most promising opportunity, अगर हम भोपाल के लिए बात करते हैं तो सबसे पहली चीज हमें हमारे टूरिज्म को प्रमोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप जैसे भी आप देखिए ओमनाथ जी ने जो बताया कि भाई वहाँ पे अगर आप देखिए हम लोग टूरिस्ट सेंट्रिक जगह है। आज अगर हम देखें फॉरेन टूरिस्ट को क्या चाहिए, उसको लेक्स मिल रही है, उसको हिल्स मिल रही है, आसपास उसको नेचुरल ब्यूटी मिल रही है, वाइल्ड लाइफ मिल रही है। पहली कैपिटल सिटी की आपको 10 किलोमीटर में शायद शेर दिख सकता है, राइट? तो वो एक अगर हम उस चीज को प्रमोट करते हैं, ब्रांड करते हैं, और दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं कि अगर इसी चीज को हम प्रमोट करके अगर हम हर साल 10,000 नए टूरिस्ट फैमिलीज भी लेके आते हैं, तो लगभग अगर हम उसको अगर देखें तो लगभग 300 से 400 करोड़ रुपए का बिजनेस भोपाल में हम ले सकते हैं। अमेजिंग। तो अगर हम 10,000 फैमिलीज को भी, देखिए आपके मेरे इनके रेफरेंसेस में भी अगर हम 5-5 फैमिलीज को भी इनवाइट कर सके, आइए इस बार आप अपनी जो वेकेशन है 3 दिन की भोपाल में स्पेंड करिए, और अगर वही चीज भी हमने कर दी तो आई थिंक एज अ सिटीजन हम अपना काम कर जाएंगे, एंड दिस इज एन इमीडिएट इम्पैक्ट जो हम अपने शहर पे कर सकते हैं। ब्यूटीफुल। व्हाट इज बेस्ट लॉन्ग टर्म विजन फॉर द सिटी? सी, लॉन्ग टर्म विजन की अगर मैं बात करूं तो हमारा जो हम इसको विजन स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, वो ये है कि वी वांट भोपाल टू बी इंडियाज मोस्ट I can say successful capital, most beautiful capital, and the capital where people would like to live, stay, work and retire. और आज जब हम अर्ली रिटायरमेंट की बात करते हैं, Gen Z अब अर्ली रिटायरमेंट की बात करते हैं, तो भोपाल इज द प्लेस फॉर देम। आई वुड से भोपाल इज द प्लेस फॉर यू। आपको जो कम्यूटेशन टाइम है आपको 2 घंटे एक दिन नहीं लगेगा, आप जो 4 घंटा दिन में दे रहे हो, हम 40 मिनट वो आपका शॉर्ट स्पैन कर देते हैं। यू विल गेट टाइम, आप अपने बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में टाइम दे पाओगे, आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कर पाओगे। सो अगर आप, एंड विद द वर्क फ्रॉम होम कल्चर, आई कैन से आई वुड रिक्वेस्ट जो लोग बाहर काम कर रहे हैं कि प्लीज कम एंड जस्ट से, और स्टार्टअप्स यहाँ पे आप आके करिए। तो अगर आप यहाँ से करोगे तो लोकली भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और उसके साथ हम इसको डेवलप करेंगे। सो आई कैन से वी आर द प्लेस जो आगे जाके द बेस्ट प्लेस टू लिव, वर्क, स्टे एंड रिटायर। वेरी नाइस। सो इसके कॉन्ट्री में अगर मैं कुछ आपसे अलग पूछूं कि इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, ट्रेड, और यहाँ पे क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो जॉब कल्चर नहीं है, बिजनेस कल्चर ज़्यादा है यहाँ पे, सो उसके लिए क्या प्रॉमिसिंग है भोपाल में? देखिए, अगर आप देखेंगे भोपाल को हमेशा बाबुओं का शहर बोला जाता है। अगर आप देखें तो पहले हम इस माइंडसेट को भी ब्रेक करना चाहते हैं, क्योंकि अब हर बच्चा गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना चाहता है, वो खुद का भी कुछ करना चाहता है। तो हमें ये भी देखना है कि कैसे हम यहाँ पे स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करें। बच्चा अगर आपका कुछ एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसको कैसे यहाँ पे मोटिवेट किया जाए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज अगर हम देखें, अगर हमें जब तक बिजनेस माइंडसेट नहीं आएगा तब तक हम शहर के लिए कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आई वुड गिव यू एन एग्जांपल ऑफ जयपुर। जयपुर के पास अगर आप देखोगे, महिंद्रा ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया, वहाँ पे सारे बड़े बड़े एमएनसीज के बैक ऑफिसेज एंड ऑल है, एंड द स्टार्टेड पैकेजिंग अगर आप देखोगे जो स्टार्टिंग पैकेजेस हैं वहाँ पे आपके 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख से। सो अगर 20-21 साल के लड़के को आज जब वो ग्रेजुएशन करके यहीं अपने शहर में 6-7 लाख रुपए का अर्निंग कर लेगा, 10 लाख रुपए की अर्निंग कर लेगा, why would he go out? Why would he go? So I can say कि वो अगर हमारे एक विजन के साथ हम चलें तो ऑटोमेटिकली बिजनेस भी प्रमोट होगा और सारी चीजें होंगी। विद अगर हम देखें तो इसमें हमें बस साथ में एक गवर्नमेंट का भी ये सपोर्ट चाहिए कि हम वो विजन लोगों तक क्रिएट कर सकें। वेरी नाइस। सो स्पर्श जी की बातों को मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी आपके साथ। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे टूरिज्म का बहुत अच्छा स्कोप है, एक ऐसा शहर है जो ग्रीन को भी मेंटेन कर रहा है और मॉडर्न स्मार्ट सिटी को भी मेंटेन कर रहा है, पर क्या ऐसा नहीं होगा कि अगर हम ग्रो करेंगे तो हम यहाँ से अपनी ग्रीनरी को लूज करेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है। अगर हमारा भोपाल जाना चाहता है अपनी ग्रीनरी के लिए और हम इसी ग्रीनरी को मेंटेन करते हुए अगर भोपाल को ग्लोबली प्रमोट करना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि नेचर को हटा के अगर हम इसको मॉडर्न सिटी में कन्वर्ट करना चाहें तो कहीं कोई प्रॉब्लम होगा। वो नेचर के साथ ही एक मॉडर्न सिटी भी बन सकती है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी सारे पेड़ों को काट दिया जा रहा है और भी सभी जगह बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से जितनी भी हरियाली है उसको हटाया जा रहा है। तो हरियाली को नहीं हटाना है, क्योंकि हमारा जो कहना चाहिए आइडेंटिटी है वो हमारी भोपाल की ग्रीनरी है, और उसी के साथ में हम अपनी गवर्नमेंट के साथ मिलकर
जो है इस ग्रीनरी को मेंटेन करेंगे और इस हमारी सिटी को आगे बढ़ा सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जो सरकार है वो एक इंजन की तरह काम कर रही है, लेकिन इसमें सिटीजन्स जितने भी हैं वो फ्यूल की तरह काम कर सकते हैं और सरकार के साथ मिलके इसी चीज़ों को मेंटेन करते हुए हम इस सिटी को बाहर ग्लोबली उभार सकते हैं। Very nice. So, how is Bhopal emerging as a better alternative to overcrowded metros? Like जैसे आज के डेट में सारे मेट्रोज बहुत ही ओवरक्राउडेड है, तो उससे एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भोपाल कैसे हो सकता है? देखिए, उसमें ऑप्शन भोपाल इसलिए अच्छा हो सकता है, बेटर इसलिए हो सकता है क्योंकि सभी जगह से एक भागदौड़ चल रही है। आप देखा जाए तो लोग बोलते हैं कि भोपाल एक बहुत ही सुकून से भरा शहर है, तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि लोग बाहर जा नहीं रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं या भोपाल में भागदौड़ नहीं है। भागदौड़ तो है, लेकिन हम अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। भोपाल में अगर आप देखेंगे तो जो 2 घंटा 3 घंटा कहीं भी जाने आने में बाहर लोगों को लगता है, वो भोपाल में 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट लगता है। तो मेट्रो सिटीज़ का जो कंसेप्ट है, अगर वो भोपाल में आता है तो ये और ज़्यादा मतलब उभर कर आएगा, क्योंकि एक तो हमारी सिटी इतनी खूबसूरत है, वहाँ पर मेट्रोज़ का आना और लोगों के लिए एक सोने पे सुहागा मतलब हो जाए। ट्रू, वेरी ट्रू। सो जैसे कि आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के साथ हम मिल के इस चीज़ में चेंज लेकर आ सकते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब भी किसी सिटी को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट किया जाता है तो उसकी आइडेंटिटी में थोड़ा ना थोड़ा लॉस तो आता है। आज भोपाल का जो रेंज है, हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के न्यू विजन प्लानिंग्स में उसके जो बॉर्डर्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। अब इस जैसे NCR डेवलप किया गया, उसी तरीके से SCR डेवलप किया जा रहा है। सो उसके तहत अगर मैं देखूं तो कितना पॉसिबल है कि हम ग्रीनरी को उसी लेवल पे मेंटेन करेंगे जैसे आज हम कर रहे हैं। हम 10 मिनट में आ तो पा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन हमारे पास अभी ये भी एक क्वालिटी है कि हम 10 मिनट में अपने ग्रीनर जोन में पहुंच पाते हैं। तो क्या तब भी ये पॉसिबिलिटी रहेगी? बिल्कुल। इस पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि 2019 में जब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो हमने ड्रीम भोपाल ग्रीन भोपाल का कंसेप्ट लेकर आए थे। वो हम इसलिए लेकर आए थे क्योंकि 2018-2019 में बहुत ही भीषण गर्मी भोपाल में पड़ी थी। राइट। और उस समय हम लोगों ने मतलब फील किया कि जो हमारी ग्रीनरी है वो काफ़ी लॉस हो रही है और उसी की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जैसा कि आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें मैं बस इतना बताना चाहूँगी कि अगर आप पेड़ों को हटा रहे हो, अगर आप हमारी ग्रीनरी को हटा रहे हो, तो पहले आप उसके लिए एक ऐसा जोन बनाइए जहाँ पे उन 10,000, 20,000, 25,000 पेड़ लगाइए। एक छोटा सा मिनी फॉरेस्ट क्रिएट करिए। जितने पेड़ आप हटा रहे हैं उससे डबल आप पेड़ लगाइए, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि भोपाल में जितनी ग्रीनरी है ना, ग्रीनरी को हटा के नेचर से लड़के कभी भी कोई सिटी बहुत ही अच्छा काम नहीं कर पाई है और ना ही कर पाएगी, क्योंकि हमारा जो ग्रीनर पार्ट है वही हमारा बोलना चाहिए सोल है, सोल है। राइट, बिल्कुल सही बात है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर हमें इस सिटी को स्मार्ट सिटी में भी कन्वर्ट करना है तो भी हमें यहाँ के जो इनसाइड ग्रीनर जोन्स हैं उन्हें नहीं हिलाना चाहिए। राइट। शहर के अंदर हमारे पास ग्रीनर जोन है जो रेयरली किसी शहर के अंदर होता है। सो अगर हम डेवलप भी कर रहे हैं एज यू आर सेइंग, तो हम और मिनी फॉरेस्ट जैसे एरियाज पहले डेवलप करें सराउंडिंग एरियाज में, एंड देन उसके साथ हम स्मार्ट सिटी को कनेक्ट करें। बहुत अच्छी सोच है आपकी। सो कमिंग अप टू मधुर जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, आप एक लाइक एजुकेशन सेक्टर में हैं और माइंडसेट्स के ऊपर ही आप सबसे ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज हमारे पास इतनी अच्छी एजुकेशन है, लेकिन बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं और फिर वो बाहर जाना चाहते हैं, तो वो क्या चेंज लाना चाहिए सो दैट यूथ यहाँ पे रुके? सबसे पहले तो यूथ क्या चाहता है? यूथ चाहता है लर्न, अर्न एंड ग्रो। राइट। तो हम क्या फोकस करें बच्चे के लिए कि भाई वो लर्न तो कर रहा है, डेफिनेटली वी हैव सो मेनी इंस्टीट्यूट्स, पढ़ाई बहुत अच्छी है हमारी। हाँ, वी आर एजुकेशन हब। उनको पढ़ा तो रहे हैं, पर उनको किस लेवल पे स्किल कर रहे हैं। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड स्किल। राइट। हम स्किल करेंगे तब उसको नौकरी पाना उतना इजी होगा। तो सबसे पहले तो हमको उसके एजुकेशन पे फोकस करना है कि वो स्किल्ड हो। दूसरा, यदि हम कॉलेजेस खोल रहे हैं और एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं और स्किल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये सारे 3 पॉइंट एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। हमको कॉलेजेस खोलना है, डेफिनेटली हमारी सिटी की कह सकते हैं ग्रोथ के लिए जरूरी है कि हमारे पास अच्छे इंस्टीट्यूट्स हो। इंस्टीट्यूट्स हो पर वो सिर्फ एजुकेशन ना दे, वो स्किल करे। सेकेंड, हम ये आते हैं कि यहाँ तो हमने बात कर ली कि लर्न करने की, अब बात आती है अर्न करने की। तो अर्न करने के लिए यदि मैं बात करूं तो जो भी हमारी कह सकते हैं कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं, यदि वो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाएं, स्किल्ड प्रोग्राम्स होते हैं जो पेड भी होते हैं, अनपेड भी होते हैं, कुछ ऐसे रहते हैं सर्टिफाइड प्रोग्राम्स,
कुछ ऐसे भी होते हैं कि स्किल ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं, कुछ होता है कि मतलब आप लोकल लोगों के लिए प्रमोशन करके उनको जॉब देने के लिए देखते हैं। तो ये उनका एक रह गया कि बच्चों का जो कनेक्शन है वो इंडस्ट्रीज के साथ बनना चालू होगा तो उनकी अर्निंग्स चालू होगी। तो डेफिनेटली वो अर्न करेंगे तो वो ग्रो करेंगे, और यदि वो ग्रो करने लगे तो वो अपना शहर जो है, ऑब्वियसली भोपाल इतना सुंदर शहर है, इतना प्यारा शहर है कि वो उसको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट तो यही बोलूंगी, लर्न, अर्न एंड ग्रो। सो आपने एक बहुत इजी फॉर्मेट में ये प्रिंसिपल रूल बना दिया है कि लर्न, अर्न एंड ग्रो। सो इस फॉर्मेट में अगर हम अपने यूथ को विजन माइंडसेट के साथ लेकर आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ का यूथ यही रहेगा और यही ग्रो करेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। सो व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप डज अ ग्रोइंग कैपिटल सिटी लाइक भोपाल नीड्स टुडे? इसमें मैं ये कहूँगी कि लीडरशिप की यदि मैं बात करूँ तो लीडरशिप सिर्फ पॉलिटिकल ना हो, सिर्फ इंडस्ट्रियल बेस ना हो, उसमें जो कह सकते हैं अपने सिटीजन्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो। जो पॉलिटिशियंस है, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो पॉलिसीज बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट लाने का काम इंडस्ट्रियलिस्ट का होता है, और एक सिटीजन का सबसे अच्छा काम ये होता है कि जो पॉलिसीज बन रही हैं, जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, उसमें हम साइलेंटली मेंबर ना बने, हम बाहर आके, जैसे हमारी टीम बेस्ट है, हम बाहर आके उसके लिए वर्क करें। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मैं यही कहूंगी कि लीडरशिप जो हो वो यदि ओरिएंटेड फॉर्म में हो, मतलब उसमें पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्वमेंट भी हो, इंडस्ट्रियलिस्ट का इन्वॉल्वमेंट भी हो और सिटीजन्स का इन्वॉल्वमेंट भी हो, तो कोई भी शहर को ग्रोथ करने में टाइम जो है वो मिनिमम लगेगा और शहर उस लेवल से ग्रोथ करेगा। जो हम भोपाल को देख रहे हैं वो भोपाल उस लेवल पे पहुंचेगा। वेरी नाइस, अमेजिंग। सो ओमना जी, मैम ने तो बहुत अच्छा रूल हमें बता दिया, लर्न, अर्न एंड ग्रो। सो इसके अकॉर्डिंग अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इन्वेस्टर्स को भोपाल की तरफ क्यों देखना चाहिए मेट्रोस को सेटबैक रख के? अभी बिल्कुल, एक इन्वेस्टर को कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए, सर्विस सेक्टर में ग्रो करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? उसे जमीन चाहिए पड़ती है, उसको बिजली, एनर्जी चाहिए पड़ती है, उसको मैन पावर की जरूरत पड़ती है, और वो आज जो मैन पावर को जरूरत पड़ती है उसको बैलेंस की भी जरूरत है। मैन पावर सिर्फ पैसों को लेकर के नहीं आता। भोपाल के आसपास देयर इज अबंडेंस ऑफ लैंड। मध्य प्रदेश इज एनर्जी पॉजिटिव, उसके पास एनर्जी की कोई कमी नहीं है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, भोपाल इज टैलेंट हब ऑफ इंडिया। भोपाल में सबसे ज्यादा स्किल मैन पावर है। भोपाल की स्किल मैन पावर यहाँ से एरोप्लेन में बैठ के बेंगलोर और हैदराबाद जा रही है। उसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस की अगर हम बात करेंगे तो भोपाल इज हैविंग अ वर्क लाइफ बैलेंस। 10 मिनट 20 मिनट में आप सुंदरता के साथ पूरे भोपाल का भ्रमण करते हुए अपने ऑफिस पहुंच सकते हैं। वी हैव मेट्रो, वी हैव गुड हेल्थ केयर फैसिलिटी, वी हैव एम्स हियर, we have good hospitals in Bhopal. So all which is required for a entrepreneur to come, that is all available in Bhopal. हम इंफ्रास्ट्रक्चर से पूरा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से स्ट्रॉन्ग है, स्किल्ड मैन पावर हमारे पास में अवेलेबल है। एंटरप्रेन्योर को जो चीजों की आवश्यकता होती है, that is each and everything is available. Cost of doing business in Bhopal would be near about 20 to 30% like less as compared to other cities. And one of the most important thing, Bhopal is centrally located. आप भोपाल से कहीं पे भी अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं by road, by airways, by railways, it is very easy to go. भोपाल is centrally located. भोपाल से 400 किलोमीटर दूर नागपुर आ जाता है, भोपाल से 200 किलोमीटर दूर इंदौर है, वहाँ से थोड़ी दूर पे मुंबई है। भोपाल से दिल्ली फ्लाइट्स आपकी दिल्ली के लिए है, मुंबई के लिए अवेलेबल है। भोपाल से जो रास्ता जाता है वो आपका रायपुर होते हुए हैदराबाद की तरफ जाता है। एवरीवेयर भोपाल इज कनेक्टेड। तो लॉजिस्टिक हब जो बनाने का एक मध्य प्रदेश में भी एक सपना था, दैट इज वेरी मच सूटेड फॉर भोपाल। तो टैलेंट, लैंड पूल, एनर्जी, वर्क लाइफ बैलेंस, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन भोपाल। तो डेफिनेटली जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें भोपाल आना चाहिए। वेरी नाइस, बहुत ही अमेजिंग बात कही आपने कि हम सेंट्रली अगर लोकेटेड हैं और हमारे पास सब तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बिल्डअप है तो व्हाई नॉट, वी शुड बी डेफिनेटली लुकिंग फॉर मोर इन्वेस्टर पूल हियर, राइट? सो व्हाट वन चेंज कैन शिफ्ट भोपाल्स इकोनॉमी नैरेटिव वेरी क्विकली? अगर एक चेंज की अगर आप बात करेंगे तो भोपाल को सिर्फ और सिर्फ एक आईटी की बड़ी कंपनी की जरूरत है। अगर एक आईटी की कंपनी भोपाल में अगर शिफ्ट होती है तो भोपाल का पूरा इकोसिस्टम चेंज हो जाएगा। अगर भोपाल में गूगल, अमेजॉन, टीसीएस का एक बड़ा सेंटर या XYZ किसी भी आईटी का एक बड़ा सेंटर अगर आता है तो भोपाल का जो नेटिव टैलेंट है, जो ब्रेंड इन होकर के दूसरे शहर में गया है, वो भोपाल में उसको
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। भोपाल में जो अभी यूथ है जो अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहा है उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक कंपनी आने से 2 से 5 हजार लोगों को जब रोजगार मिलेगा तो पूरा इकोसिस्टम चेंज हो जाएगा। तो एक चेंज जो पूरे भोपाल को कल्चरली चेंज कर सकता है, इकोनॉमिकली चेंज कर सकता है, वो है एक आईटी कंपनी। और मैं भोपाल एक साथ टीम का भी हमेशा से एक ड्रीम रहा है कि भोपाल का जो यूथ है वो एंटरप्रेन्योर है। बहुत सारी चीजें अभी हम बता ही नहीं पाते, देश को शायद पता नहीं होगा। भोपाल में सबसे ज्यादा फिल्मों की शूटिंग्स हो रही है, राइट। नोबडी नोज कि जितनी भी पिक्चर है वो भोपाल में शूट हो रही है। भोपाल के आसपास की अगर हम पूरी पेरिफेरी को कवर करेंगे तो मालूम पड़ेगा इंडिया की 50% हिंदी फिल्मों की शूटिंग में भोपाल का कंट्रीब्यूशन है। तो that is one of the things कि because Bhopal is beautiful, it is very easy to do business. I would rather request young entrepreneurs, I would request the government also कि भोपाल को एंटरप्रेन्योरशिप कैपिटल बनाना चाहिए कि जो यूथ है उसको इस प्रकार की सुविधा ना केवल भोपाल के यूथ को दिया जाए। हम तो कहते हैं कि इंडिया में जितना यूथ है जो स्ट्रगल कर रहा है कहीं पे एक कंपनी बनाने से लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसको भोपाल में लेकर के आया जाए, उसको जमीन दी जाए, उसको ऑफिस की स्पेस दी जाए, उसको इंटरनेट का कनेक्शन और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स वो दिया जाए। तो भोपाल का जो एटमॉस्फेयर है, जो एटमॉस्फेयर, चाहे वो लोगों की बात हो, इतनी मीठी बोली बोलते हैं, सड़कों की बात हो या हरियाली की बात हो, लेक्स की बात हो, वो सारी चीजें भोपाल में। तो भोपाल को अगर एंटरप्रेन्योरशिप कैपिटल बनाया जाएगा, दैट शुड बी वन ऑफ द ड्रीम एंड इट शुड बी अकम्प्लिश्ड। और उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक स्टार्टअप कल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर यहाँ भोपाल में शुरू करना है। Very nice. So, what support do local business need from the system to grow faster? Because I've seen कि यहाँ पे बहुत सारा मतलब ट्रेड कल्चर है, लाइक शॉप कल्चर, बहुत बड़ा शॉप कल्चर है। न्यू मार्केट हमारे भोपाल की एक आन बान शान सब कुछ हम कह सकते हैं, हर इंसान उस जगह से गुजरता है। सो उनको ऐसा क्या लोकल सपोर्ट, उनको ऐसा क्या चाहिए जो सिस्टम अगर प्रोवाइड करे तो उनकी ग्रोथ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है? भोपाल मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। भोपाल में पर्स बनते हैं, जो लेडीज के पर्स हैं वो वर्ल्ड में पूरे एक्सपोर्ट होते हैं। लेकिन आप भोपाल में ही पूछेंगे तो भोपाल के लोगों को ही शायद नहीं पता होगा। मुझे नहीं पता, मुझे आपसे पता पड़ रहा है। भोपाल के पर्स पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होते हैं, दे आर नोन फॉर इट। भोपाल का जो क्राफ्ट है वो जाना जाता है। जैसे आपने न्यू मार्केट की बात करी, न्यू मार्केट एक वो जगह है जहाँ पे ऐसे मार्केट दिल्ली में जो है वो बड़े फेमस हैं कि आप चांदनी चौक जाते हैं और वहाँ पे आप बाजारों में घूमते हैं। भोपाल के आप न्यू मार्केट में आएंगे तो यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग। खाने की चीज वहाँ पे मिलती है, कपड़े वहाँ पे मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान वहाँ पे मिलता है। कल्चरली पूरा भोपाल वहाँ पे इकट्ठा होता है। इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस टू हैंग अराउंड। फिर आप जैसे ही सिटी की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे ज्वेलरी है, वहाँ पे हैंड क्राफ्टिंग के सामान मिलते हैं। लेकिन एक कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इसको प्रमोट करना जरूरी है कि जो खूबसूरती है उसको बताना जरूरी है। भोपाल में कोई आता है, अगर आप डीबी मॉल में जाएंगे, इट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस। भोपाल में मेट्रो है, भोपाल में एम्स है। तो जो भोपाल के व्यापारी है उनका सिर्फ इतना सा कहना है कि हमारी जो आइडेंटिटी है उसको बताना जरूरी है। भोपाल के शहर के अलावा बाहर के लोग भी हमारे न्यू मार्केट को देखने आए। भोपाल के अलावा बाहर के लोग हमारे 10 नंबर के मार्केट को घूमने आए। हमारी जो शहर की, भोपाल की शहर की जो गलियां हैं उसमें अगर आप घूमेंगे तो आपको बनारस का जैसा आनंद आएगा। छोटी छोटी बनारस की वो गलियां हैं, वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे मस्जिदें हैं, वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ का अपना एक खुद लजीज व्यंजन है। ट्रू, ये हमें पता है। लेकिन बाकियों को कैसा, भोपाल एक साथ टीम की कोशिश है कि भोपाल के जो व्यंजन है, भोपाल की जो गलियां हैं, आबो हवा है, जो प्राचीन चीजें हैं, आप मोतिया तालाब जाकर के देख सकते हैं। बेगम चौक भोपाल कहाँ पे होता है? वो गौर महल है। और गौर महल की हमने जिक्र नहीं किया, वरना भोपाल में देखा जाए तो गौर महल एक खूबसूरत सी जगह है। मालूम पड़ा लेक के जस्ट बाजू में गौर महल है। वैसे आप परी बाजार जा सकते हैं। ऐसी तमाम भोपाल की जगह हैं जो आप जैसे क्रिएटर लोग जो मेहनत कर रहे हैं कि लोगों को पता चले, भोपाल के लोग भी उस कल्चर को एंजॉय करें और बाहर से आने वाला व्यक्ति भी एक कल्चर को एंजॉय करे। कहना नहीं चाहिए, वो हमसे 200 किलोमीटर दूर इंदौर है, उन्होंने अपने 56 को प्रमोट किया। बिल्कुल, बहुत अच्छे से प्रमोट किया। भोपाल में ऐसे कम से कम 12 56 मौजूद हैं। वेरी वेल सेड।
मिनाल शॉपिंग स्ट्रीट। मैं आपको बोलना चाहता हूँ भोपाल नहीं, इंडिया में शायद एकमात्र कॉलोनी मिनाल कॉलोनी होगी जहाँ पे स्कोडा का शोरूम है। यस, बिल्कुल सही किसी बात। कॉलोनी के अंदर आपने स्कोडा का शोरूम नहीं देखा होगा। शाम को अगर आप मिनाल में घूमेंगे तो यू विल फाइंड कि आप भोपाल में नहीं है, इंडिया में नहीं है, एक अलग ही माहौल वहाँ पे बनाया हुआ है। ट्रू, एक सिंगापुर थीम जैसा थीम क्रिएट किया हुआ है वहाँ पे पूरे। आपने मंच दिया तो मैं बताना चाहूंगा कि आप नवरात्रि में भोपाल आइए तो आपको पता चलेगा भोपाल में इतनी सुंदर दुर्गा जी के पंडाल लगाए जाते हैं जिसमें इंडिया की सबसे सुंदर मंदिर और जो भी चीजें भोपाल मतलब इंडिया में जो भी घटित हुई रहती हैं साल भर में उसकी सुंदर झांकी लगाई जाती है। और ऐसी कम से कम 50 से 60 इंडिया लेवल की झांकियां भोपाल में लगाई जाती हैं। आइए भोपाल आइए, घूमते देखिए। तो इस कल्चर को हमें प्रमोट करना पड़ेगा। हमारा खान पान रहन सहन, हमारी जो बोली है, इतनी खड़ी बोली जो से अभी हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कोई भाषा नहीं है, एकदम खड़ी बोली है, भोपाल की पहचान है। बिल्कुल, शोले को भूलना होगा, शोले को भूलना होगा। और हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश है, लेकिन मध्य प्रदेश का दिल जो है वो भोपाल है। तो बिल्कुल आके देखिए कि भोपाल कितना खूबसूरत है। सुकून के साथ यहाँ पे जो कारीगरी मिलती है, जो खाने का लजीज स्वाद मिलता है, और साथ में जब इवनिंग में आप अपनी नॉर्मल कॉफी भी इंजॉय करते हैं तो वो बहुत ही मेस्मराइजिंग हो जाता है। एग्जैक्टली, वेरी नाइस। सो स्पर्श, अभी हम बात कर रहे थे जिस तरह से ओम सर के साथ, भोपाल में इतनी सारी क्वालिटी, भोपाल इतना सुंदर है, भोपाल में इतना प्रमोट करने लायक चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद व्हेन एज अ ऑडियंस जब मैं इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे जाती हूँ, मैंने भोपाल के बारे में सिर्फ ऐसी चीज़ें प्रमोट होते देखी हैं जो बिल्कुल भी मुझे सही नहीं लगती। बट लाइक लेक को हमेशा अलग गंदे नामों से ही प्रमोट किया जाता है या कुछ नेगेटिव प्रमोटिंग ही हम देखते आ रहे हैं। तो उसके लिए आप यूथ से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो फॉलोअरशिप है सोशल मीडिया पे, दैट इज योर एसेट। आप अपने एसेट को अपने लिए कैसे यूज करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंडली, आप किसी भी यूथ को जो दूसरे किसी मेट्रोपॉलिटन में रह रहा है वो हमेशा कोशिश करता है मेरा जो शहर है, मेरा जो कैपिटल है वो प्रमोट हो, क्योंकि जब वो ब्रांड होगा तो ऑटोमेटिकली आपका काम बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि हमारा जो यूथ है, जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट इनसे करना चाहूंगा कि आप हमारे कैपिटल भोपाल की, मैं शहर भी नहीं बोलूंगा, कैपिटल बोलूंगा, because we I proudly say I belong to a capital. तो कैपिटल का जो हमारा भोपाल कैपिटल का जो भी अच्छी चीजें हैं, जो भी हमारी खूबियां हैं, आप वो अपनी रील्स में दिखाइए, क्योंकि जब आप वो चीज दिखाओगे तो हो सकता है कोई फॉरेन टूरिस्ट, कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट, कोई बाहर का टूरिस्ट आके वो देख के प्रमोट होके भोपाल विजिट करना चाहे। वेरी नाइस। और हम क्या कर रहे हैं, हम भोपाल की वो चीजें दिखा रहे हैं। देखिए, हर घर में भी दिक्कत होती है, हर किसी जगह पे दिक्कत है, बट कभी अगर कल कोई मेहमान आता है तो मैं अपने घर की दिक्कत नहीं दिखाऊंगा, मैं अपने घर की बेस्ट पिक्चर दिखाऊंगा। तो आप सब भी अपने खुद के ब्रांड एम्बेसडर्स हो अपने अपने कैपिटल के लिए। तो मैं आपसे यही बस इस पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज मेक इट श्योर कि जो भी आप रील्स प्रमोट करो, जो भी कंटेंट आप प्रमोट करो, वो चीजें दिखाइए जिससे भोपाल की ब्रांडिंग हो सके, जो ये बता सके कि यार किसी में वो इंक्विजिटिवनेस है, यार ये शहर जाने लायक है। 10 किलोमीटर में मुझे यहाँ पे टाइगर दिख रहा है, 10 किलोमीटर में मैं अपने जंगल में आ जाता हूं। बात कर रहे हैं। तो ये एक चीज अगर हमारा यूथ दिखाने लगेगा ना, तो ऑटोमेटिकली कई जो टूरिस्ट प्लान कर रहे हैं, मुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है, वो सब यहाँ के लिए प्लान करें। बिल्कुल सही बात। जैसे अभी ओम सर ने कहा कि यहाँ की गलियां जो है बनारस की याद दिलाती हैं, यहाँ का खाना जो है चांदनी चौक की याद दिलाता है। 56 हम 12 से ज्यादा अपने शहर में देख सकते हैं, स्कोडा हमारे सोसाइटी में बैठा है। सो अगर हम ये बातें अपने रील्स में प्रमोट कर रहे हैं या एज ए यूथ मैं कहीं पे भी प्रमोट कर रही हूँ, तो ऑफकोर्स किसी एक की इच्छा तो होगी कि यार मुझे भोपाल देखना है। सुकून के शहर की तरह प्रमोट कर। बिल्कुल, हर आदमी वीकेंड पे क्या चाहता है, सुकून चाहता है, सुकून चाहता है, तो उसको हम सुकून के शहर की तरह, सुकून के बिल्कुल उसके लिए हम प्रमोट करें। और हमारे लिए वेकेशन गेटवेज इतने ज्यादा पास हैं कि मतलब अगर मुझे आज 2 दिन का अपनी फैमिली के साथ एक ट्रिप प्लान करना है, आई कैन इजीली गो टू पचमढ़ी और मड़ई। डेफिनेटली। और मैं एक और मैसेज भी यूथ को इसके थ्रू देना चाहता हूँ, बिकॉज मेरी कई कॉलेज के टीपीओ से भी बात होती है। माई सेल्फ आई एम वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट, एंड ये हम लोग एक बहुत चीज देखते हैं कि कई बार आप क्या करते हैं कि आपके थ्रू नोइंगली अनोइंगली आपकी रील्स या कोई, जैसे अगर आप स्टैंड अप कॉमेडियंस देखते हैं, वो ऐसी चीज बता देते हैं जिससे कि आप भोपाल को एक लेड बैक सिटी, आप अपनी जो क्वालिटीज हैं उसको लेड बैक दिखा देते हो, आप दिखा देते हो हम स्लो सिटी हैं। तो हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर पैकेज है, आपको स्टार्टअप में एक पर्टिकुलर फंडिंग कोई करने वाला था, लेकिन वो चीज देख के वो बंदा हो सकता है वो बोले कि यार आपका तो सिटी ऐसा है तो लोगों का बिहेवियर ऐसा होगा। तो आप अपनी परचेजिंग पावर कम कर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रमोट योरसेल्फ वेल सो दैट आप उस चीज के साथ कर सको, और ऑटोमेटिकली आप देखोगे इसका इम्पैक्ट आएगा, एंड आई एम वेरी मच श्योर फॉर दैट।
थैंक यू सो मच, बहुत अमेजिंग बात कही आपने। और यूथ अगर हमारे साथ जुड़ता है इस चीज़ के लिए तो ऑफ कोर्स हम भोपाल की वो छवि बिल्कुल देख पाएंगे जिसका सपना लेके आज बेस्ट हमारे साथ बैठी है। सो नाउ वी आर कम टू आवर थर्ड राउंड विच इज़ रैपिड फायर इन भोपाली स्टाइल। तो अब हम देखेंगे कि भोपाली स्टाइल में यहाँ के कॉर्पोरेट लोग और यहाँ के हाई विजनरी पीपल कैसे जवाब देते हैं। सो विल स्टार्ट विथ आवर मोस्ट फेवरेट फाउंडर स्पर्श जी। श्योर, Okay. So one word for today's Bhopal. यूथफुल, Very nice. One sector with the highest future potential. tourism. One idea that can transform Bhopal in the next 5 years. Every citizen should brand Bhopal like they are branding their own home. Very nice. One thing Bhopal must promote more. I can say Bhopal should promote the talent pool more. Very nice. If Bhopal was a startup, its tagline should be. सुकून का शहर. Wow. Thank you so much. This was the rapid fire with Sparsh. Now we'll move to Deepa ji. So Deepa ji, now the rapid fire comes to you. You need to be very Okay. quick with your answers. So one thing Bhopal must promote more. Nature, One habit every Bhopali must change. laziness, Very nice. One thing outsider don't get about Bhopal. family culture. Okay, how? एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो मेट्रो सिटीज़ में डिवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और फैमिली कल्चर मतलब जो जॉइंट फैमिली रहती थी पहले वो नहीं है। और अगर आप भोपाल में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 60% फैमिलीज अभी भी ऐसी है जो जॉइंट फैमिली बनकर रह रही हैं। और we are rooted to our culture. yes, right. Very nice. So investment, sports or tourism, where does Bhopal truly wins? Sports, Lake view or leadership view? leadership from Lakeview. Very nice. Youth city or retired city? यूथ सिटी। One myth about Bhopal you want to break. यहाँ मिथ तो मैं यही बोलूंगी कि सूरमा भोपाली की टंग में ही हम बात करते हैं, ऐसा सोचा जाता है बाहर, पर ऐसा नहीं है। हमारे पास मल्टीपल हिंदी और प्रॉपर We are proud to be Surma Bhopali. What is wrong in that? हमारा अपना एक स्टाइल है। नहीं, डेफिनेटली मैं ये बोलती हूँ वो स्टाइल है, पर हम उस स्टाइल में लिमिटेड नहीं है। No, definitely we are not limited to that. Very nice. So ऐसी कौन सी चीज है ओल्ड भोपाल की जो बाहर के लोग नहीं जानते? यहाँ का जरदोजी का वर्क एंड मोती की चप्पल। वाह, मोती की चप्पल। सो भोपालीज आप लोग को भी पता है क्या कि यहाँ पे मोती की चप्पल पहनी जाती थी? अगर पता है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। Okay. One idea that can transform Bhopal in the next 5 years. लर्न, अर्न एंड ग्रो फॉर यूथ। Very nice. What role can youth entrepreneurs and professionals play together? आई कैन इन अ सिमिलर वे, कोलैबोरेटिव वे। यदि एक कोलैबोरेटिव वे में सब वर्क करेंगे तो ग्रोथ ज़्यादा इजी होगी। Very nice. So now we come to our fourth guest, Omnath sir. So sir, अभी हम आपसे बहुत सारी बिजनेस टिप्स भी जान सकते हैं क्या रैपिड फायर में? बिल्कुल जान सकते हैं। उसके लिए आप कैचअप कंसल्टेंट की इंस्टाग्राम और यूट्यूब आईडी पे आइए। तो आपको स्ट्रेट सा जवाब मिल गया है कि आपको कहाँ जाना है। तो अभी हम रैपिड फायर ही खेलते हैं। श्योर श्योर। Okay. So investment, sport or tourism, where does Bhopal truly wins? इन्वेस्टमेंट्स। Biggest strength and biggest weakness? Biggest strength is talent pool, and biggest weakness, we are not able to promote Bhopal in logical and correct manner. Very nice. As per investment Bhopal in 2035, one word. IT. One thing outsider don't get about Bhopal. One thing outsider, हाँ, जो outsiders को हमारे बारे में समझ नहीं है। आउटसाइडर्स को हमारे बारे में समझ में आती है। हमारा टैलेंट आउटसाइडर्स अभी तक पहचान नहीं पाए। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि भोपालीज हैव एस्टैब्लिश्ड देयर फैक्ट्रीज इन गुजरात। दे आर फैब्रिकेशन एक्सपर्ट। BHL 1960 में आई थी, तो भोपाल इज वेरी नोन एंड वेरी एक्सपर्ट इन फैब्रिकेशन। One thing Bhopal must promote more. कल्चर। Okay. If Bhopal was a startup, its tagline should be. भोपाल कर लेगा इंडिया को मुट्ठी में। Wow, very nice. So भोपाल कर लेगा इंडिया को मुट्ठी में, यहाँ का दिल बन के। So इसी के साथ हमारे रैपिड फायर जो है यही एंड होता है। अब हम जाते हैं अपने फिफ्थ राउंड की ओर। So now we come to our fourth segment, which is now it's your turn. भोपाली हो तो बताओ, ये हमारा है थीम। So enough of me asking questions to them.
Now they will ask questions to our viewers, और अगर वो भोपाली हैं, अगर वो ट्रू भोपाली हैं, तो डेफिनेटली उन्हें इसके बारे में ज़रूर पता होगा। और ये हमारा एक ओपन कन्वर्सेशन सेशन भी है, जहाँ पे हमारे ये गेस्ट जो है बात करेंगे अपने रियल बेस्ट के बारे में। So the mic goes to all of you. We'll start with you. What question would you like to ask? ओके, सो भोपाली हो तो ये बताओ, अभी इंडिया की कौन सी बहुत बड़ी फिल्म की शूटिंग 2024 में हुई थी जो रिलीज भी हुई? Okay. So भोपाल में शूट हुई है वो यस, भोपाल में मतलब एक सॉन्ग सीक्वेंस इसका शूट हुआ, भोपाल के आसपास शूट। वेरी नाइस। सो नेक्स्ट योर्स। भोपाली हो तो अगर ये बताओ कि भोपाल के ही कुछ बच्चों ने बड़ी बड़ी मूवीज़ में और बड़े बड़े एक्टर्स के साथ में परफॉर्मेंस दिया है, तो वो कौन है? तो टैग करो उन बच्चों को अगर आप जानते हैं वो चाइल्ड आर्टिस्ट को, और हमें बताएं कि आप एक ट्रू भोपाली हैं। सो नेक्स्ट इज योर्स। भोपाली हो तो बताओ कि शाही इमाम कहाँ है? ओके, शाही इमाम कहाँ है, ये तो भोपालियों को पता होना ही चाहिए। सो प्लीज़ हमें कमेंट पे अपना जवाब ज़रूर दें। नेक्स्ट योर्स। भोपाली हो तो बताइए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशा में भोपाल के आसपास कौन सी हेरिटेज लोकेशन मौजूद है? वाओ, सो कौन सी हेरिटेज लोकेशन मौजूद है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऑफ भोपाल? ओके, सो दिस वाज राजू टी स्टॉल। राजू टी स्टॉल, दैट वाज अमेजिंग। एबीएस वैकेंसी को यही बोलेंगे। सो अगर आप ट्रू भोपाली है तो इसका जवाब आपको पता होगा, और हमारे कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब हमें ज़रूर दीजिएगा। सो नाउ विल ओपन द माइक फॉर आवर गेस्ट एंड डू द ओपन कन्वर्सेशंस। सो बेस्ट को आप लेकर आए, अपने इसके बारे में बताया। इसके अलावा हम यूथ पे थोड़ा सा बात करना चाहते हैं, हम ओल्ड भोपाल पे थोड़ा सा बात करना चाहते हैं कि कैसे यहाँ के यूथ को हम अपने साथ जोड़ सकें, किस तरह से हम बेस्ट के साथ जुड़ के आगे बढ़ सकते हैं, अपनी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसके ऊपर अब हम बात करते हैं। सो अगर आप बेस्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं, विच इज़ भोपाल एक साथ टीम, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, इट इज़ जस्ट अ फोरम। और उस फोरम में आप अपना मेरे व्हाट्सएप नंबर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा इस पे इंस्टाग्राम पे पेज है बेस्ट के नाम से, भोपाल एक साथ टीम के नाम से, आप वहाँ पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप कोई अच्छी रील्स बनाते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, तो आप वो भी कीजिए, जिसको हम अपने पेजेस और अपने मेंबर्स से भी शेयर करें। यू कैन डेफिनेटली जॉइन। और अगर आपकी कोई आइडियाज़ हैं दैट हाउ वी कैन प्रमोट भोपाल ग्लोबली, नेशनली जैसे प्रमोट किया जा सकता है, तो प्लीज़ जस्ट पुट इन योर आइडिया ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, और अदरवाइज हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज और इंस्टाग्राम का हमारा फेसबुक का जो पेज है, वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मतलब ये बहुत ही ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम सब जुड़ सकते हैं। अगर हम कुछ भी अच्छा कर रहे हैं अपने शहर के लिए, तो हम अपने आप को टैग कर सकते हैं बेस्ट के साथ। बट एक माइंडसेट के साथ जरूर आप जुड़िएगा कि आप भोपाल के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये आप सोच के अगर आएंगे व्हाट्स एंड फॉर मी, तो शायद ये प्लेटफॉर्म नहीं है। बट अगर आप ये सोच के आते हैं कि मैं भोपाल के लिए कुछ प्रो बोनो करना चाहता हूँ, और बिल्कुल मैं कुछ ऐसी चीज़ करना चाहता हूँ जो कि कुछ टैग्ड नहीं है, या मैं उसमें कुछ फेवर अट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो आप डेफिनेटली वहाँ पहुँच जाओ। वो कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? अब भोपाल के यूथ को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अगर कुछ ढूंढना चाह रहे हैं भोपाल में, तो टूरिज़्म के लिए वो भोपाल की वो गलियों को, भोपाल के उस कल्चर को, भोपाल के खाने को प्रमोट करिए, कि लोग बाग आपकी इंस्टाग्राम आईडी और यूट्यूब आईडी पे आ करके वो आपको कनेक्ट हों, और आप भोपाल के टूरिज़्म को प्रमोट कर पाएँ, और वो टूरिस्ट आपके कस्टमर बने, तो एक रोजगार के साधन भोपाल में उपलब्ध होंगे। और जिनके पास गाड़ियाँ हैं, वो चाहे तो भोपाल के आसपास जो हेरिटेज साइट्स हैं, रायसेन है, आपके नरसिंहगढ़ है, और उदयगिरी है, ये सब 40-50 किलोमीटर में तो इतनी सारी साइट्स हैं, भीमबेटका है, भोजपुर है। तो आप अपनी गाड़ी अगर आपके पास में है और आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो इन साइट्स को प्रमोट कीजिए, और पीपल विल कनेक्ट विथ यू, और आप अपनी गाड़ी में बिठा के उन्हें घुमाइए। मतलब इन ऑल में आप ये कह रहे हैं कि भोपाल में टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर डेवलप हो सकता है। एंड मुझे लगता है कि जो भोपाल के यूथ को एक और चीज करना चाहिए, स्टॉप फैंटेसाइजिंग अदर सिटीज एंड अदर मेट्रोस। आप अपना एक खुद, यू आर ब्लेस्ड टू बी देयर एट अ सिटी जहाँ पे आपके पास सारी चीजें दी, प्लेजेंट वेदर है, प्लेजेंट तरीके से आप रह सकते हो, बड़े घर में आप रह सकते हो, बिल्कुल कम्युनिकेशन टाइम में आपका समय नहीं जा रहा है। और सबसे अच्छी बात ये कि अगर आप बाहर से जाके सीख के आते हो और अपने ही घर के बढ़ाते हो, तो आप अपनी सारी चीजें यहाँ पे डेवलप कर पाओगे। तो स्टॉप फैंटेसाइजिंग कि मैं बाहर जाके करूंगा, और इस चीज को लिवरेज कीजिए, इस चीज को ब्रांड कीजिए, आई एम देयर इन माय सिटी एंड आई एम डूइंग वेल ओवर।
ये बहुत अच्छी भोपाल में अगर कोई अपने आप को इन इंडस्ट्रियलिस्ट पैटर्न या इन बिजनेस पैटर्न लेकर आना चाहता है तो गवर्नमेंट की तरफ से उसे क्या सहयोग, क्या गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्टार्टअप्स की स्कीम्स हैं। गवर्नमेंट एमएसएमईज के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स दे रही है। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आप अपना MPDIDC में या फिर जो हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट IC या इंडस्ट्रियल जो है इस पर आप जाके जुड़ सकते हैं। DIC से भी जाके आपकी जो पूरी स्कीम्स हैं वो आपको पता चलती है। और मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को सिर्फ बाहर इस कल्चर के लिए मत भेजिए कि मेरा बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, मेरा बच्चा बाहर ये कर रहा है। आप इस चीज़ को प्रमोट कीजिए कि मेरा बच्चा यहीं रह रहा है और बहुत अच्छी काम कर रहा है। एंड सब्सिक्वेंटली जो हम बाद में सफ़र होते हैं कि मेरा बच्चा वहाँ है मैं यहाँ हूँ, आप उस एक डिप्रिवेशन से भी बच जाएंगे जो कि यहाँ पे रह के वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि अगर एक अच्छा काम करने को यहाँ मिल रहा है, प्लस हमारा ये शहर एक वो शहर है जहाँ पे स्वच्छ हवा है भाई, हमें सांस लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता। कुछ मेट्रो सिटीज़ हमारे देश की ऐसी हैं जहाँ पे हमें गर्मियों में सोचना पड़ता है, विंटर्स में सोचना पड़ता है। आज हमारे पास इतना ग्रीनरी बैक सपोर्ट है, अगर हम यहाँ पे इंडस्ट्रीज लेकर आते हैं तो हमारा कार्बन कंट्रोल भी उतना ही वेल मैनेज रहेगा। मैं सबसे पहले तो भोपालियों को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ और मेरी रिक्वेस्ट है कि ये पहले फील करिए कि हम भोपाल में हैं और मैं भोपाली हूँ, और अपने अपने सोशल मीडिया स्टेटस पर लगाइए आई एम अ प्राउड भोपाली। और दूसरी चीज़ कि अगर आप देखेंगे तो भोपाल में अगर नया भोपाल है या पुराना भोपाल है, भोपाल में लेक्स हैं। भोपाल का जो मतलब हार्ट ऑफ मतलब बोलना चाहिए कि शहर का जो दिल है वो यहाँ पर धड़कता है। दूसरी चीज़, किसी भी शहर में आपने नहीं देखा होगा कि 100 सालों तक किसी विमेन ने जो है लीड किया। राइट, ये ही एक ऐसा शहर है जहाँ पे विमेन्स ने लीड किया है। तो एक हमारे शहर के जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम ही रानी कमलापति है। तो बहुत अमेजिंग चीज़ है कि हमारे यहाँ रानियों का शासन रहा है, फीमेल जो है वो रूल किए हैं। सो ऑफ कोर्स मतलब मेरा तो ऐसा मानना है कि यहाँ की जो वुमेन्स है वो भी बहुत पावरफुल, हमारे DNA में वो चीज़ें आ रही हैं, वो शासन आ रहा है कि यहाँ की वुमेन्स बहुत पावरफुल हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं, दे कैन डेफिनेटली कम अप विद द बिगर आइडियाज़। और अगर उनके पास ऐसे कोई आइडियाज़ हैं तो बेस्ट का प्लेटफॉर्म उनके लिए भी ओपन है और वो हमारे साथ यहाँ पर आके जुड़ सकते हैं। प्लस एक माइंडसेट के ऊपर भी मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम सबको उस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा कि हमें हर चीज़ इन द रेंज ऑफ कंफर्ट मिल जाएगी। थोड़ा सा तो हमें अपने कंफर्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा अगर हमें चाहिए कि हमारी लाइफस्टाइल यहाँ से स्विच बैक से पूरा एक चेंज पर आ जाए। हाँ, देखिए मेरा तो हमेशा एक ही चीज़ कहना होता है, हम जैसे भोपाल की बात कर रहे हैं, किसी भी सिटी की ग्रोथ के लिए यूथ को आना होता है। ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं फिर से बोलूँगी, यूथ को आना होता है। पर कैसे आना होता है? डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के साथ, आप कोलैबोरेशन के साथ आइए। सबसे पहले तो आप अपने शहर को जानिए कि आपका शहर क्या है, आपके शहर में क्या यूनिक है। आप अवेयर होंगे तब तो आप भोपाल को प्रमोट कर पाएंगे बाहर। तो सबसे पहले यूथ आगे आए, वो भोपाल के बारे में जाने और पॉजिटिव वाइब्स जो है वो बाहर ले जाए, तो डेफिनेटली वो भोपाल की जो ग्रोथ हम जिस लेवल तक चाहते हैं वो हमें मिलेगी। और अभी आप लोगों ने देखा कि GIS भोपाल में आया तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए ही जो है पॉलिसीज़ बनी, और जो स्टार्टअप्स हैं उसमें महिलाएं सबसे ज़्यादा आगे, और मध्य प्रदेश में 100 से ज़्यादा महिलाओं ने अपने स्टार्टअप्स को रन किया। वेरी नाइस, तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हम इस तरह से अपने आप को मतलब आगे लेकर आ सकते हैं और अपनी चीज़ों को प्रेजेंट अप कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ बिगर सिस्टम्स, तो हमें उतनी जल्दी अप्रोच मिलेगा फॉर दी बेटर डेवलपमेंट एंड बेटर अथॉरिटी के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। टूरिस्टों के लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि भोपाल जैसे शहर में अगर आप आते हैं तो एक स्क्वायर है, एक पॉलिटेक्निक स्क्वायर है। आप उस साइड चले जाएंगे तो आप ओल्ड भोपाल में पहुंच जाते हैं, इस साइड आएंगे तो आप न्यू भोपाल में आते हैं। वहाँ पे कल्चर डिफरेंट है, वो एक अलग आबो हवा है। वहाँ पे आप सड़क के किनारे खड़े होकर के काफ़ी चीज़ों का लुत्फ ले सकते हैं, अच्छे खाने का आनंद ले सकते हैं। आप न्यू भोपाल में आएंगे तो एक नया कल्चर है, यहाँ स्टार्टअप कल्चर है। भोपाल के खुद के ब्रांड्स हैं जो आज की डेट पे वो बेंगलोर, हैदराबाद जैसी जगहों पे और अन्य शहरों पे उन्होंने अपने खुद के फूड आउटलेट्स स्टार्ट किए। तो भोपाल एक चौराहे में लेफ्ट और राइट में ओल्ड और न्यू में कन्वर्ट, मतलब भोपाल पट्टियों से आप सीधा कॉर्पोरेट शेयर्स पे आ सकते हैं इन 5 मिनट्स। आई कैन से दिस कि ये बहुत ही अच्छी हमारे यूनिक चीज़ है हमारे शहर की। और मैंने ये भी देखा है कि भोपाल के अंदर कारीगरी का भी बहुत योगदान है। मतलब टूरिज्म में जितना एक्सपर्टीज रखते हैं उतना ही हमारे पास कारीगरी भी उतनी हैंडफुल है। और मुझे लगता है भोपाल की न्यूट्रलिटी हर चीज में प्रमोट करना बहुत जरूरी है आप सबको, बिकॉज भोपाल की न्यूट्रलिटी इन टर्म्स ऑफ अगर आप खाना खाइए बहुत ज्यादा स्पाइसी, बहुत ज्यादा ऐसा फीका है वो नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल न्यूट्रल जो एक इंडियन खाना है आपको वो मिलेगा। बोली भी आपको वैसी मिलेगी, लोग भी आपको बिल्कुल न्यूट्रल मिलेंगे। मतलब आपको कहीं भी किसी चीज का स्पर्श अपन सबके मन में एक बात है कि भोपाल एक वो शहर है
जहाँ पे आपको पूरे इंडिया का आदमी बसा हुआ मिलता है। भोपाल एकमात्र ऐसा शहर होगा जहाँ पे गोरखपुर से लेके केरल के कोची या सबसे लास्ट त्रिवेंद्रम तक का व्यक्ति यहाँ पे आकर के सेटल हुआ है, और वो खुद अपनी मर्जी से सेटल हुआ है, पोस्ट रिटायरमेंट सेटल हुआ है। और भोपाल पूरा अगर आप घूमेंगे तो पता चलेगा कि पूरे इंडिया का यहाँ पे आपको नुमाइंदगी मिल जाएगी। मतलब यहाँ का जो सांसद है वो कह सकते हैं पूरे इंडिया से इलेक्टेड है। साथ में एक स्पिरिचुअल सिटी भी है, आप देखेंगे भोजपुर मंदिर भी है, ताजुल मस्जिद भी है जो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, कॉस्मो है सब। हाँ एग्जैक्टली। सो ये बहुत ही अच्छा ब्लेंड मिलता है हमें हमारे शहर के अंदर। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि यूथ भी जो है वो यहाँ से बाहर बहुत ज़्यादा जाना नहीं चाहता है, वो कोशिश करता है कि उसे यहाँ पर ही कुछ नया मिले, वो यहीं पे अपने पेरेंट्स के साथ रहे। बिकॉज हमारे फैमिलीज़ में आज भी वो कल्चर है कि हम साथ में खाना खाना पसंद करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं लाइक मैंने भी जब 4-5 साल के लिए इस शहर को छोड़ा था तो मुझे वो चीज़ बहुत मिस हुई थी। वी वर अर्निंग वेरी नाइस, वी वर ऑन द बिगर लाइक डेजिग्नेशंस, लेकिन उतनी भीड़ में और उतनी स्पीड में वो घर का जो खाना है वो लाइक वो जो घी का एक चम्मच डलता है मम्मी के हाथ का, सो वो कल्चर कहीं ना कहीं छूट रहा था। सो वो आपको यहाँ पे मिलता है, और आपके जो ज़िंदगी के कई 100 घंटे ट्रैवलिंग में गुजरते हैं वो एटलीस्ट यहाँ आपकी फैमिली के साथ गुजरते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। एज वुमन मैं ये भी एनहांस करना चाहूँगी कि हमें सबसे ज़्यादा जो संतुष्टि है ना शॉपिंग में मिलती है। तो यदि देखा जाए ना तो भोपाल में आपको सारी जगह का सब कुछ अवेलेबल है, चाहे ड्रेसेस हो चाहे एक्सेसरीज हो, सब कुछ अवेलेबल है। हमारे यहाँ के डिजाइनर्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो बाहर भी नाम कमा रहे हैं। तो यदि उससे देखा जाए तो भी भोपाल बेस्ट है। और जरी जरदोजी का वर्क तो आप भोपाल के अलावा कहीं और इतना अच्छा मिलेगा ही नहीं। दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वुमेन्स, क्योंकि शॉपिंग के बिना हमारी जिंदगी आज नहीं चलेगी। ये तो बहुत बड़ा, लेकिन हमारे लोगों को भी प्रमोट करना आना चाहिए। बिकॉज़ समटाइम्स व्हाट वी सी इज कि हम कोई बाहर से आया उसको हम बहुत ज्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं, बट देयर आर पीपल हु आर डूइंग वंडरफुली। आप उनको प्रमोट कीजिए रादर देन इन कॉम्पीटिंग। आप कोलैबोरेट कीजिए कि भाई कैसे इसके साथ कोलैबोरेट होकर मैं उसको प्रमोट कर सकता हूँ। बिकॉज अगर उस चीज का प्रमोशन हो रहा है, उस व्यक्ति का प्रमोशन हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके शहर का भी प्रमोशन हो रहा है, आपके कैपिटल का प्रमोशन हो रहा है। तो उनको आप जो बाहर से भी जो आ रहे हैं, लाइक बॉलीवुड जब आता है यहाँ पे, तो मतलब मेरा ये उनसे रिक्वेस्ट है कि आप कोशिश करिए कि यहाँ की कुछ चीज़ों को आप यूज़ करें, यहाँ के लोगों को यूज़ करें। यहाँ के लोगों में और यहाँ के फैशन डिज़ाइनर्स में एक अलग बात है, एक अलग तरीके का आपको लेगेसी ट्रैवल करता हुआ मिलेगा। सो यू कैन यूज़ डेट, एंड उससे हमारे यहाँ के लोगों को और एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है। और प्लस अगर गवर्नमेंट भी इस चीज़ के लिए सहयोग दे कि अगर वो कोई काइंड ऑफ सब्सिडी प्रोवाइड करती है कि अगर आप यहाँ के फैशन को, इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं, तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा पूल क्रिएट हो सकता है। बिकॉज आई हैव सीन जो कारीगरी यहाँ होती है वो कारीगरी मैंने अनमैच देखी है बाकी शहरों के साथ। मुझे लगता है जैसे मोदी जी ने बस एक फोटो शूट किया था लक्षद्वीप में और पूरा वहाँ पे टूरिज्म बूस्ट हो गया था। तो मैं चाहता हूँ एक बार इंडियन वेव्स भी आ जाए और वहाँ से एक फोटो ट्वीट हो जाए तो ऑटोमेटिकली कई सारे टूरिस्ट हमारे यहाँ पे भोपाल में आने लगे। वेरी नाइस। एक टूरिस्टों के लिए मैं एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ कि भोपाल में आप देखेंगे आपको सबसे कम साइकिल मिलेगी। तो ऐसा क्यों होता है, बताओ स्पष्ट। मतलब हिली एक्चुअल में भोपाल का टेरेन ऐसा है कि आप जब 1 किलोमीटर चलते हो तो उसके बाद हिल आ जाता है, उसके बाद में आप फिर नीचे हो जाते हो, फिर हिल आता है, फिर नीचे आ जाते हो। कहने का मतलब है आप भोपाल घूमने आएंगे तो आप साइकिल नहीं चला पाएंगे और माउंटेन से ऊपर और नीचे होते रहेंगे। ऐसा शहर भी मेरे ख्याल से दुनिया में एक मात्र ही होगा। और ऐसा शहर भी नहीं होगा जहां आप एक तालाब किनारे चाय की सिप ले रहे हो, जहां आईटीएच में ऊपर बैठकर तालाब का नजारा मिल रहा हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको लेट्स बी रियल विद सिमरन भी भोपाल में मिलेगा। तो दिस वाज इट। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके और बहुत सारी हमने क्वालिटीज़ भोपाल की समझ पाए। कई बार हम शहर में रहते तो हैं लेकिन हम एक ना कहना चाहिए कि एक रोज़मर्रा की नॉर्मल ज़िंदगी को बस जी रहे होते हैं, हम वहाँ की चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। सो एक बहुत अच्छा लाइक माइंड ओपनिंग कन्वर्सेशन था कि हमारे पास यहाँ पे कितना कुछ है करने के लिए, कितना कुछ और बढ़ाया जा सकता है करने के लिए। आज हम लेक्स के आसपास होते हैं लेकिन मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि इतना नेचर से हम कनेक्टेड हैं कि आज हमें इस शहर में कम से कम चिड़िया उड़ती हुई दिखती हैं। हम बहुत सारे शहरों में ये बातों को मिस करते हैं। ये बहुत ही अमेजिंग सा शहर है, सुकून यहाँ पे हमेशा बरकरार रहेगा, हम उसे बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन स्पीड को भी हम कैरी करने चाहते हैं अपने साथ और इस तरह से कैरी करना चाहते हैं कि उससे हम ओवर बल्जेट या ओवर क्राउडेड में ना चले जाएं, हम उसको मेंटेन एंड बैलेंस रख सकें। जैसे हमारे अमेजिंग
कपल यहाँ पर हैं जिन्होंने सब कुछ बैलेंस किया हुआ है। हमारे साथ अमेजिंग बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो हमें गाइड करते हैं वो सर हैं। हमारे पास एक बहुत अमेजिंग सी लेडी हैं जो हमें ये बताती हैं कि माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, हमारे पास बहुत सारा स्किल है, तो उन सबको हम डेफिनेटली कैरी करेंगे। हर शहर के पास एक ऐसा मोमेंट आता है जब उसे चूज़ करना होता है कि वो क्या चूज़ करे, कंफर्ट को चूज़ करे, लग्जरी को चूज़ करे, स्टेप फॉरवर्ड को चूज़ करे या स्पीड को चूज़ करे। भोपाल आज उसी जगह पे खड़ा है जहाँ पे उसके पास काम, कल्चर, स्पेस, हार्ट सब कुछ है, उसका सुकून है, उसका दिल है, उसकी तहजीब है। लेकिन अब उसे और क्या चाहिए? उसे चाहिए यूथ का कॉन्फिडेंस, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ का कोलैबोरेशन और गवर्नमेंट की वो क्लियरिटी कि वो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या लेकर आना चाहती है, कैसे लेकर आना चाहती है, किसके लिए लेकर आना चाहती है। हम ये सारी चीज़ों पे आज हमने बात की है। मुझे ऐसा लगता है कि जब शहर में यहाँ का यूथ रहता है तो आइडियाज़ रहते हैं, अगर अपॉर्चुनिटीज़ ग्रो करती हैं तो फ्यूचर ग्रो करता है, और अगर सिटीज़ के सिटीजन्स उसे आगे लेके बढ़ते हैं तो पूरी की पूरी सिटी उसे फॉलो करती है। आज बेस्ट ने ये इनिशिएटिव किया कि आज हम कुछ चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो आज हमारे साथ सिटी भी उसमें जुड़ रही है। हमारे हर मकाम में हमारे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं जो शहर के बदलाव में अपना योगदान देना चाहते हैं। लेकिन सवाल अब भी यही खड़ा है, क्या आज भी हम सिर्फ वो रिटायर्ड शहर के नाम से ही जाने जाते हैं, या हम अब वो सिटी हो चुके हैं जो राइज होना चाहती है? और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हम उसका हिस्सा बनना चाहते हैं या आज भी हम उसी हैशटैग में जीना चाहते हैं? दिस वॉज द होल एपिसोड ऑफ लेट्स बी रियल विद सिमरन ने भोपाल बियॉन्ड द लेक्स, फ्रॉम लेक्स टू लीडरशिप। दिस वॉज इट। आई एम योर होस्ट सिमरन। आपसे फिर मिलूंगी, बिकॉज हेल्दी कन्वर्सेशन और हेल्दी एनवायरनमेंट के अंदर ही हम बहुत अमेजिंग चीज़ें लर्न कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई एम साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।